Hello everyone, and once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant, and as you guys can see it on the screen that since the forms have already been out for the aspirants who's preparing for 3-year LLB, that is this video is explicitly for those students जिन्होंने graduation कर लिया है या they are in the graduation right now, that is 3 years का graduation or maybe 4 years, and they have decided that they're gonna go for the 3-year LLB course. So Symbiosis University conduct every year an exam that is called as AIAT, which is going to happen in the month of December itself, but for the session 26. So that's why it's AIAT 2026. So the forms were already out on 1st September 2025, but registrations have not started. So the notification was already out. So that's why the entire process, and for our dear students, we have decided let's take up for the form filling process. So I would request all the students to remain in this video for next 10 to 12 minutes because the entire form is not a very typical or a difficult form है कि बहुत details चाहिए, some basic details needs to be given, so that is what I am going to take you through forward. ठीक है, so जैसे ही आपको the link is provided in the description, you go and click on that link. This is the portal which is going to get open up over here. अब इस portal में हमें यहाँ किसी को देखना नहीं है कि भाई यहाँ पे कौन है, person है या जो भी है. Sorry, my bad. Yeah, so this is what is the website which is going to open up for. This is Symbiosis Law School Pune. So to your understanding, जैसे हमको पता है कि there are 4 universities in the country, but हमें जो Symbiosis पुणे है वही 3-year LLB AIAT के थ्रू एडमिशन कराता है. So in this screen you have to go and click on this apply for LLB program. The moment you will click, this is the portal which is going to open it up. अब ये पोर्टल में क्या लिखा है, हमें यहाँ ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है या SLS पुणे LLB ID पासवर्ड देना है. ये चीज ऑलरेडी पहले से आ रहा था स्क्रीन पे when we were clicking on this part, but the option of register was not being given. So that's why अब register का option आ गया. So now we'll gonna register this particular form. So for the students who's filling up the form for the very first time, these details, so you'll gonna get it later on. You have to first click on this. But before clicking on this register part, I'll first take you guys through the important dates which is being provided over here. So सबसे important date जैसे यहाँ की मैंने बताया था, online application have started on 1st of September 2025, but इन्होंने registration have open नहीं किया था. अब ये closing date है 30 नवंबर. So we are recording this in the month of September. October पूरा है, November भी है. So it is not a very मतलब कि कम time मिला है. You have a proper 2 months time you have in hand right now ना, 2.5 months. They say last date for payment of the registration fees which can be paid through multiple मीडियम्स. इंडिया में डिजिटल इंडिया हो रखा है, तो 30 नवंबर तक दैट इज द लास्ट डेट तक यू कैन मेक इजीली पेमेंट. फिर दिया है एडमिट कार्ड AIAT का मिलेगा, तो दैट इज 11th of December 2025, दैट इज थर्सडे. सो अगेन एन आंसर टू द क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट कि सर फॉर्म फिल कर दिया, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, डेट दिए, बट एक्सपेक्टिंग कि वो एग्जैक्टली उस डेट पे ना दे, बट देना चाहिए. ठीक है, सो इसीलिए दिस इज पर्टिकुलर फॉर a 3-year LLB AIAT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. एंड PI की भी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, बट PI डेफिनेटली हैपेंस आफ्टर यू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम. देन दे से ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट AIAT कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा 20 दिसंबर को 9 AM से 10:45 AM तक. दैट मीन्स हमने ऑलरेडी बताया 105 मिनट्स का ये पेपर होता है. तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन 20 December, that's the date. So if any of the students who are still figuring it out कि सर इसके लिए preparation कैसे करनी है, कहाँ जाना है, we don't have any details, don't worry, IMS Get Set Law is over here. The link is provided in the description for getting up counseling about this कि ये course क्या है, इसमें कितना क्या पढ़ना पड़ता है. Get in touch with our education advisor and register on that link, you will come to know. ठीक है, so ये details होगी related to the most important dates for our exam. Then there are dates which they say, so ये already अपन ने taken कर लिया. Then personal interaction call letter, that means 20 को पेपर दिए, within 10 days you will start getting the call letters. Then document uploading portal, तो there are certain documents, ये हम जब PI के बारे में बात होगी तब we'll gonna tell you कि what all documents are needed. The statement of purpose and multiple documents are being provided कि student को upload करना पड़ता है. That is what they about. तो इन्हें कहा 30 December से 2nd of January तक. So once you are done with the exam, we'll gonna come up with the analysis video, वहाँ पता चलेगा. फिर PI letter
लेटर आएगा तो पीआई के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर ऑन आवर गेट सेट लॉ यूट्यूब चैनल। बट अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपको पता ही नहीं कि सर हमें तो पहले से पता नहीं था बट ये लिंक मिल गया, थैंक गॉड हमें कहीं से लिंक मिल गया, तो अब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड जरूर हिट द लाइक बटन इफ यू गाइस लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। देन पीआई ऑनलाइन कब से चालू होगा, 12th एंड 13th ऑफ जनवरी को हो जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 23rd ऑफ जनवरी। सो ऑलमोस्ट इफ यू सी 20 को एग्जाम है, एक महीने के अंदर पता चल जाएगा कॉलेज हाथ में है कि नहीं, दैट इज एसएलएस पुणे, ठीक है, वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी। देन लास्ट डेट फॉर एडमिशन फॉर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट 30 जनवरी। जैसे ही आपका ये मेरिट लिस्ट में नाम आया, डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटनी वगैरह हुआ, लास्ट डेट फॉर एडमिशन, क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, फीस एंड एवरीथिंग फिल करनी होती है, तो 30 जनवरी होगा। सेकंड मेरिट लिस्ट 5th फेब को आएगा, 12th में फाइनल हो गया एंड जुलाई से टेंटेटिवली 2026 में सेशन चालू हो जाएगा। इसलिए पेपर का भी टाइटल है AIAT 2026, ठीक है। चलो तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट कि अब जैसे ही मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है, आई एम गोना टेक अप टू द स्क्रीन, तो मेरे पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए आएगा, ये पहले स्क्रीन खुलेगी, ठीक है। ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट में आने वाला है, आई टेल यू ये एग्जैक्टली क्या है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। रजिस्टर पे यू विल क्लिक, दिस इज व्हाट इज यू गोइंग टू गेट इट ऑन द स्क्रीन, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, यू कैन रीड इट अप इवन व्हेन यू क्लिक ऑन द रजिस्टर। क्या आता है, सो इट सेज टर्म्स एंड कंडीशन, स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम ऑफ द पेज एंड अग्री टू द सेम, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, बिफोर इनिशिएटिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लीज एंश्योर दैट यू गो टू योर ब्राउजर सेटिंग्स and turn off the autofill option to avoid incorrect information being entered। तो नॉर्मली कभी कभार क्रोम पे ऑलरेडी ऑटोफिल ऑप्शन होता है, हमने पहले जो डिटेल डाली थी वो प्रीफिल हो जाती है, वो बोल रहे हैं ऑफ कर दो, ये बेसिक डिटेल्स है। रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे समझते हैं, बट इससे पहले यहाँ कलर चेंज कर देंगे क्योंकि ये रेड थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, आई थिंक व्हाइट सही बैठेगा, ठीक है। सो क्लिक ऑन दी आई अग्री बटन, ये आई अग्री बटन ये लास्ट में आएगा, ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, बट वी विल से फिल अप द डिटेल्स एसएलएस पुणे डिटेल्स पेज एंड क्लिक ऑन रजिस्टर। तो अपन ने रजिस्टर पे क्लिक किया, ये यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया एंड देन वी हैव बीन टेकन अप टू दिस स्क्रीन। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल गेट एन ईमेल कंफर्मेशन आफ्टर प्रोवाइडिंग डिटेल्स, यू कैन प्रोसीड टू मेक योर पेमेंट। तो ये जो ईमेल कंफर्मेशन आएगा ना आपको रजिस्टर करने के बाद आई अग्री पे, तो आपकी ईमेल आईडी, योर पासवर्ड एंड योर यूनिक एसएलएस आईडी जो आपके पास जनरेट होगी वो मेल पे आएगा। फिर उसके लिए पासवर्ड चेंज करने के लिए ये स्क्रीन था, बट आई विल टेल यू, डोंट वरी, ठीक है। देन क्लिक ऑन मेक पेमेंट, ये आगे देखेंगे, यू कैन यूज एसएलएस आईडी पासवर्ड टू मॉडिफाई डिटेल्स, यही मॉडिफाई करने का पार्ट था। द रजिस्ट्रेशन अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल, 2150 का अमाउंट है, तो ये बता दिया गया हमने पहले से। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस up to 250 words and scanned copy of the one reference letter from the official email only from your head of the institute, faculty, supervisor, HOD of the institute, college in the document upload portal made available on the website at the time of online personal interaction। अब समझ आया, ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, they were started taking screenshot and sending it to us कि सर ये अभी देना है क्या, नहीं, क्लियरली पढ़ो, इंग्लिश आती है ना, ठीक है। क्या लिखा है, मेड अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन पीआई इंटरैक्शन, तो मतलब पीआई लेटर आएगा तो इस पे काम करना है, वो एग्जाम के बाद की बात है, तो अभी कुछ नहीं करना है इस पे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी थी। नेक्स्ट इज प्लीज नोट दैट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यू राइट अबाउट योर पर्पस एनीथिंग, ये बेसिक डिटेल्स दिए, हम इन सब चीज़ों को बाद में ले लेंगे जब हमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करना होगा, अभी इट इज़ नॉट अ नीडेड, ठीक है। Then they say payment instructions, this is the payment fees 2150, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेस्क 30 नवंबर तक करना है, ऑनलाइन आरटीजीएस मल्टीपल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन दिए कि कॉलेज के पास ही सारा राइट्स है, दे कैन यूज एवरीथिंग, डिस्प्यूट होगा कहाँ जाएंगे एंड एवरीथिंग। तो ये सब डिटेल्स पढ़ने के बाद आई वुड हाईली रिकमेंड प्लीज जस्ट गो थ्रू इट, दीज आर बेसिक डिटेल्स। जैसे ही आप नीचे जाएंगे अबाइड बाय ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पे टिक किया आई अग्री, इस पर क्लिक किया तो ये आपके पास स्क्रीन ओपन हो गई, ठीक है। सो जब आप ये चीज़ करेंगे यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना चालू करना पड़ेगा, वेयर इट विल गोइंग टू कैप्चर अप योर पर्सनल डिटेल्स। अब ये पर्सनल डिटेल्स में क्या आएगा, मिस्टर मिसेस जो भी होगा, पूरा नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, डेट ऑफ बर्थ अपनी प्रोवाइड कर दी। देन कैटेगरी, अब कैटेगरी में क्या क्या आने वाली है, आई जस्ट टेल यू। एक होगा ओपन, SC, ST, PWDs, कश्मीरी माइग्रेंट्स या वॉच ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल, दीज आर द कैटेगरीज जो ड्रॉप डाउन में मिलेगी। जैसे आई एम एन ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का, तो मैंने ओपन डाल दिया। आप ओपन हो, SC ST हो, यू पुट इट दैट वे, ठीक है।
वॉट एवर कैटेगरी यू पुट एक्सेप्ट ओपन, ओपन के अलावा डालोगे ना तो एक पॉपअप आएगा। वो पॉपअप क्या है, जैसे मैंने यहाँ ट्राई किया था SC डालने का कि अगर कोई स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या कोई भी दूसरी कैटेगरी का है तो ये पॉपअप आता है विच सेज दैट आई हैव चूजन शेड्यूल कास्ट, अगर आपने शेड्यूल ट्राइब किया तो शेड्यूल ट्राइब, PWD किया तो PWD एंड सो ऑन। कैटेगरी फॉर 3 year LLB एडमिशन एज SLS पुणे for the year 2006-07. Category certificate should be in English or Hindi only. In case it is in any other language, then it's English Hindi translation duly signed by designated government authority. That means आपके पास आपके category का जो certificate है, if it is in any language other than Hindi English, तो you have to get it in Hindi English and then उसे certify कराना पड़ेगा, which is to be produced. Non-compliance of the same will amount to rejection of that particular form. ठीक है, I have all requisite documents to support my claim category. This is what you are agreeing. I understand, undertake. There will be no change in any circumstances. Shall be solely responsible and I have read and understood. तो आप ये affirm कर रहे हो, आप ये एक oath ले रहे हो कि हाँ भाई जो भी details I am giving it's right, and then you click on OK. When you select any of the options other than open के अलावा करेंगे तो हमेशा ये pop-up you will going to take. ठीक है, फिर भी यहाँ पे से आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जाम्पल, इफ यू कम अक्रॉस एनी इश्यूज, प्रॉब्लम होती है सर नहीं समझ आ रहा, देर इज अ डाउट, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में पुट अप अ मैसेज, वी आर मॉनिटरिंग ऑल द चैट, सो विल गोना पुट द आंसर टू दैट। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं फर्स्ट पे। तो सफिक्स हो गया, जेंडर हो गया, कैटेगरीज हो गया, यूनिक मोबाइल नंबर, प्लीज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई केम अक्रॉस इट और मुझे ये ऑप्शन नहीं मिला, शायद ये ऑप्शन है भी नहीं। जो भी यू पुट अप योर मोबाइल नंबर, योर यूनिक ईमेल आईडी, फर्स्ट वो नंबर आपके पास होगा। आई बिलीव दैट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स इसमें थोड़े रिस्पॉन्सिबल होंगे। 11th-12th वाले बच्चे व्हेन फॉर्म भरते हैं दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम, तो पेरेंट्स का नंबर लेते हैं। आपके पास यू विल हैव योर ओन यूनिक आईडी, अपनी पर्सनल डालना। कॉलेज की जहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हो वहाँ का ईमेल आईडी डोंट पुट इट अप, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद बंद होगी तो इसीलिए अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पुट करेंगे, नंबर डालेंगे, जो नंबर वर्किंग कंडीशन में। एक बार व्हेन वी फिल अप द फॉर्म ना तो ये डिटेल्स एडिट नहीं हो रही हैं, दैट इज व्हाट आई हैव चेक्ड व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म। तो प्लीज बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल फिलिंग अप ऑल द डिटेल्स। 100% यहाँ पे चीज़ मिली कि एडिट नहीं हो रहा। आप अपने यूनिवर्सिटी वगैरह का डिटेल्स यू कैन पुट अप, पीजी का जो भी आपने डिप्लोमा एंड एवरीथिंग किया, जहाँ से भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यू कैन एडिट दोज डिटेल्स, बट ये डिटेल्स एडिट नहीं होती, तो इसलिए बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। ठीक है, तो फ़ोन नंबर, प्राइमरी ईमेल आईडी, रीटाइप योर आईडी, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं, मतलब ये कंपलसरी नहीं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कोई दूसरी ईमेल आईडी तो ऑल्टरनेट भी डाल देना। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक पर्सनल डिटेल फिल। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पूछ रहे हैं डिग्री डिटेल्स, सो ये से पास या अपीयर, तो ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा चलो ये तो पहले पूरा फॉर्म आ गया था। बेसिकली क्या है कि ये फर्स्ट पार्ट फॉर्म का है, डिग्री डिटेल्स, AIAT टेस्ट सेंटर्स आ गए, टेस्ट सेंटर के बाद वर्क एक्सपीरियंस, रेसिडेंशियल एंड अपलोड फोटो आईडी, ये फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो इसलिए मैंने यहाँ कैटेगरी से स्टेप बाय स्टेप चालू किया है। कैटेगरी में क्या डिटेल्स है ऑलरेडी डन, नाउ ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि अब मैंने यहाँ पे SC सिलेक्ट किया है, तो देखो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, दैट इज व्हाट आई सेड। बट जब मैंने यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी सिलेक्ट किया था, यहाँ देखो ऑप्शंस ओपन हो गए कि आपका क्या कैटेगरी डिटेल्स है, आपका UDID कार्ड नंबर क्या है, तो ये आपको बेसिक डिटेल्स इसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बट ओनली फॉर दिस कैटेगरी स्टूडेंट। बाकी SCs में देखो नॉर्मल है, ऑल्टरनेट, ओपन में भी ये आ रहा है, सिर्फ PWD के लिए ये ऑप्शन ओपन हो, तो यू हैव टू बी रेडी विद योर कैटेगरी डिटेल्स कि उसमें कितना परसेंटेज का डिसेबिलिटी, एंड देन योर यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जो UDID कार्ड नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पास्ट और अपीयर्ड का डिटेल आएगा अबाउट योर डिग्री डिटेल्स, तो वील सी कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, इट इज पास्ट और अपीयर्ड। सो जैसे आई हैव ऑलरेडी पास्ट, सो आई क्लिक्ड ऑन पास्ट, तो देखो यहाँ पे इनने पूछा एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ योर डिग्री, तो मैंने अपने परसेंटेज डाल दिए जो ग्रेजुएशन की यू हैव टू पुट, या फिर इफ इट इज लाइक अपीयर्ड होगा तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, सो फिर यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस होगा, आई वुड हाईली रिकमेंड प्लीज सिलेक्ट द सिटी यू बिलोंग टू, या फिर द सिटी वेयर यू हैव सम रिलेटिव्स, कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड्स, या फिर सिलेक्ट द सिटी विच इज योर नेबरिंग सिटी। जैसे मैं मुंबई में हूँ तो मैंने मुंबई सिलेक्ट किया, दूसरा मैंने सिलेक्ट किया पुणे विच इज नियर बाय टू माई सिटी, एंड देन भोपाल बिकॉज दैट्स माई होम टाउन। सो इसीलिए दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। वर्क एक्सपीरियंस, अगर इफ यू सिलेक्ट वर्क एक्स है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि
कि सर वी हैव ऑलरेडी डन आर मतलब ग्रेजुएशन वाज ऑलरेडी डन एंड देन आई हैव 4 5 3 4 व्हाटएवर एक्स एक्सपीरियंस होगा, तो यू पुट इट अप, तो यू हैव टू सी फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ्स एज ऑन 1 May 2026। तो फॉर्म तो फिल हो रहा है सितंबर में, बट उनने 2-3 मंथ्स पीछे जाके 1 May के पहले तक, सो इफ एनीवन इज हैविंग एक्सपीरियंस पोस्ट दिस वो नहीं लेना है, यहाँ डेट तक सिंस यू आर वर्किंग। सो जैसे इफ आई टेल आई हैव बीन वर्किंग सिंस लाइक 2011 से मैं काम करना चालू कर रहा हूँ, तो यहाँ तक आई हैव 14 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस टिल दिस डेट, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू पुट अप, बट दिस हैज टू बी इन मंथ, सो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट, ठीक है। तो ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, येस नो, नो करेंगे तो दिस ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू बी देयर। देन इट कम्स टू योर रेसिडेंशियल एड्रेस। अब यहाँ पे यू पुट अप योर रेसिडेंशियल एड्रेस एंड बेसिक डिटेल्स है, दिस यू कैन इजिली फिल अप। नाउ द क्वेश्चन कम, इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज रेसिडेंशियल एड्रेस? हमेशा होता है जहां मैं रह रहा हूं, तो राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन मुंबई बट माई परमानेंट एड्रेस इज भोपाल, तो आई विल सिलेक्ट नो, तो दे विल आस्क कि भाई परमानेंट कहाँ का है, बट इफ यू से कि सर रेसिडेंशियल भी परमानेंट है, रेसिडेंशियल और परमानेंट दोनों सेम है, तो यू पुट अप यस, दिस ऑप्शन गेट्स वेव्ड ऑफ, ठीक है। देन इट सेज ब्राउज पे जाके यू पुट अप योर फोटो, अच्छी सी स्मार्ट सी फोटो, बट कीप एवरीथिंग इन माइंड कि इट इज प्रॉपरली द डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड, अच्छे से फोटो रहे, ऐसा कुछ ये नहीं सेल्फी वगैरह डाल दिया, बिकॉज दैट एग्जैक्टली फोटो इज गोइंग टू बी देयर इन योर एडमिट कार्ड एंड देन इट विल गोइंग टू बी चेक विद आधार कार्ड व्हेन यू विल गोइंग टू बी देयर, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गई, सिफिक्स, कैटेगरी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये लिखा हुआ है, यू विल ऑल्सो कम अक्रॉस इट। You will not be permitted to edit the information provided after submission of form। याद रखिए, जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू किया ना, ये डिटेल्स एडिट नहीं कर पाएंगे, मतलब ध्यान से भरना है, स्टार्टिंग में बताया था। सो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, OTP आएगा, OTP फिल किया, सबमिट, ठीक है। अब सबमिट होने के बाद दिस इज द डिटेल्स विच यू विल गोइंग टू गेट अप ऑन द स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा, जहां पे पर्सनल डिटेल ऑलरेडी फिल हो गई हैं। नाउ जहां येलो है दैट मीन्स यू हैव टू फिल अप, यू आर फिलिंग एजुकेशनल डिटेल्स राइट नाउ। अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, दिस इज फॉर द वंस अदर देन ओपन, जो अपन ने बताया था ना SC ST एंड सो ऑन, उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, नॉट टू दी ओपन कैटेगरी 1, ठीक है। एंड देन मेक पेमेंट, सो बेसिक है। तो नाउ यू से ग्रेजुएशन का लेटेस्ट डिग्री, तो योर डिग्री नेम क्या है, BCom, BE, BTech, वॉट एवर, BA, BBA, वॉट एवर ग्रेजुएशन यू आर इन, यू विल फिल। इफ अदर डिग्रीज नेम प्लीज स्पेसिफाई, मतलब जो इधर नहीं है वो यू विल राइट इट ओवर हियर। नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, बेसिक, ड्यूरेशन ऑफ योर ग्रेजुएशन इन ईयर्स, जैसे ही देखोगे दे गिव 3 4 5, मतलब कोई 3+2 वाला है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा BCom करेगा या फिर BTech करेगा 4 years वाला, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, वट एवर नंबर ऑफ ईयर्स यू क्लिक, उसी हिसाब से आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ओपन होगा। बट यहाँ पे आई हैव सिलेक्टेड 3 years, क्योंकि मैंने BCom किया था, सो आई हैव सिलेक्टेड 3 years। अब इनने पूछा डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन डिग्री, इफ आई से no, that means right now I'm in final year, ठीक है। But if I say yes, they will give me an option first year, second year and third year. That means of all 3 years, I have to provide my percentage, my grades, my class, my total marks. That is what has to be provided. तो no करूँगा तो 2 ही खुलेगा definitely. If I am saying that I am doing BCom or BBA and तो मैंने 3 years select किया and I say that I have not completed my graduation, तो I'll say no. तो दैट मीन्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का तो डेटा यू विल हैव, बट व्हेन यू विल से कि येस आई हैव कंप्लीटेड, तो इट विल हैव टू प्रोवाइड 3 years। अगर कोई 4 करेगा तो 4, 5 करेगा तो 5, ठीक है। सो डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, आई सेड येस, सो यू सी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों आ गया। आपको क्या क्या फिल करना है, यू हैव टू शेयर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग और अपीयर्ड, यू हैव टू पुट अप द मंथ, जैसे मार्च है तो मार्च 2018, फेब्रवरी फेब 2018 ये करना है। टोटल मार्क्स इन परसेंटेज, ठीक है, तो अगर परसेंटेज मिलते हैं तो परसेंटेज में लिखेंगे डेफिनेटली, एंड देन यू विल से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, वट एवर, और ग्रेड्स ABCD, तो यू विल गेट योर मार्कशीट पे दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड, पुट इट ओवर देयर, ठीक है। टोटल मार्क्स इन परसेंटेज लिखना है, ऐसा नहीं वहाँ पे एग्जैक्ट मार्क्स लिखे, क्योंकि हर कॉलेज का मार्क्स इज डिफरेंट, ठीक है। मेरे कॉलेज में इफ आई रिमेंबर 1200 to 1500 के बीच में टोटलिंग अप होता था, जितना मुझे याद है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट you have to, I think 600 से out of 600 होता था, not 1200, ठीक है। तो you have to pull up the details and save and continue क्लिक किया। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट, ग्रेजुएशन का डिटेल्स तो चला गया। Now it says कि besides your graduation have you done any UG, PG, diploma, certification course? If you say yes, तो यहाँ डिटेल्स प्रोवाइड कर दो, that's it।
बेसिक डिटेल्स, it's basically your profile which is getting made up over here, that's it. ठीक है, इसका बहुत impact नहीं पड़ता क्योंकि this exam is going to be given by the students who are in third year right now till the one who have already cleared up job वगैरह में वो दे रहे हैं, ठीक है. तो प्रोफाइल यहाँ बनता आता है, ठीक है. सो देखो पर्सनल डिटेल्स हो गया था, वहाँ तो प्रीफिल चला गया, एजुकेशन डिटेल्स आ गया यहाँ पे, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. नाउ कम्स अपलोडिंग डॉक्यूमेंट. इधर पे यहाँ देखो, आई read this note, please skip this step if you have selected open category and continue for payment. तो यहाँ पे जब since I have selected open and filled up the form, मैं जैसे ही drop down click कर रहा था ना, I was not getting this option और सीधे save and continue पे चला गया. Even though it says that it is important, I was not getting an option, but it says SC ST category students have to upload documents, that is, so what are those documents? The category certificate, ठीक है. Person with disability, medical certificate. Kashmiri migrants, Pandits, Hindu families, categories having the supporting documents, again a category certificate. इधर पे भी category certificate होगा, defense category certificate which you need to upload, ठीक है. जो भी आपने starting form में personal detail में भरा था वहाँ, ठीक है. अब जब आपने personal detail भर दी थी ना, तब you will gonna get a email पे you have your ID and then you will be provided with the password. जब वो password आप वापस से, I'll take you guys back to the screen. यहाँ जब बेसिक डिटेल्स भरी, ईमेल आईडी एंड ऑल, ठीक है, यू विल गेट एन ईमेल, वहाँ पे आपका यूनिक आईडी वगैरह आएगा. अब मान लो ड्यूरिंग दिस फॉर्म यू से कि अभी तो मैं फॉर्म नहीं फिल करा, आई मूव आउट. तो जब आप मूव आउट करोगे तब जैसे यू विल अगेन क्लिक ऑन लॉग इन, जो फर्स्ट स्क्रीन पे आया था, अब तो यू हैव यूनिक आईडी एंड पासवर्ड जो ईमेल पे आया था आफ्टर फिलिंग द पर्सनल डिटेल्स, ठीक है. अब यूनिक आईडी आ गई, पासवर्ड आ गया, यू क्लिक ऑन साइन इन. अब तो रजिस्टर नहीं करना, रजिस्टर इज फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसे ही पासवर्ड पे क्लिक करेंगे ये आएगा एंटर योर करंट पासवर्ड जो ईमेल पे आएगा, देन यू कैन क्रिएट अ न्यू पासवर्ड. बस यही चीज़ थी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता था, इसलिए आई जस्ट टुक इट लेटर ऑन. तो ये थोड़ा सा फॉर्म में आगे पीछे किया इन्होंने क्योंकि मुझे ही बाद में पता चला, सो आई जस्ट स्टार्टेड इट इन द इनिशियल पार्ट ओनली, ठीक है. सो गोइंग अहेड विद दिस पार्ट, ये हो गया, बीकॉम सिलेक्ट हो गया, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. सो जैसे ही आई हैव डन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, सेव एंड कंटिन्यू एंड नेक्स्ट, ये आ गया मेक पेमेंट का. अब इन्होंने बोला था भाई यहाँ पे थोड़ा सा हाई फेलियर चल रहा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, तो डायरेक्टली नेट बैंकिंग से कर लो, दैट इज व्हाट दे मेंशन. तो SLS पुणे LLB फीस 2150, क्लिक हियर टू पे, फिर पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, काम खत्म, ठीक है. अब ये तो हो गया. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जब आप ये स्क्रीन देखोगे, अभी तो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, तो ये स्क्रीन के नीचे वाले पोर्शन से लिए थे. दिस इज हाउ योर स्क्रीन इज गोइंग टू लुक लाइक. यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा होगा एंड देन यू हैव SLS पुणे LLB, आपकी फोटो प्यारी सी, आपका नाम, एंड नाम के पास देयर इज एन एरो, यू कैन जूम इट अप, ओके. इस पे एरो पे माय फॉर्म, समरी, माय ईमेल, प्रिंट प्रीव्यू, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है. व्हेन यू क्लिक ऑन माय ईमेल, ये ईमेल आपको इनबॉक्स इनका इनबिल्ट है, प्लस आपके Gmail पे भी यू विल गोना गेट एन ईमेल, द सिमिलर ईमेल, ठीक है. So your name, thank you for applying, etc., etc. Please ignore this email if you have already received your ID, your email ID, password. That means they have their own inbox while you log in, and on your Gmail also you will going to get all these details, ठीक है. So that is what I just wanted to tell कि यहाँ पे भी डिटेल होगा. When you select summary पता चल जाएगी, print preview, my form, आपने क्या क्या डिटेल्स भरी है. बट कंसिडरिंग कि शायद डिटेल्स गलत चली गई, दैट इज, है ना, गलत हो गया नंबर, तो अब आपको यूनिक नंबर, यूनिक ईमेल आईडी यू वुड बी नीडिंग. तो दैट्स व्हाई अगेन अ डिस्क्लेमर, प्लीज 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 ये गलती मत करिएगा, ठीक है. सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड गाइस, एंड इफ यू वुड हैव फिनिश्ड अप कंप्लीटिंग ऑल दीज डिटेल्स इन द फॉर्म, प्लीज चेक बिफोर सबमिटिंग एंड मेकिंग द पेमेंट. लगता है तो नया एप्लीकेशन कर लेना, बट आई वुड हाईली रिकमेंड ऐसी मिस्टेक मत होने देना. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कमेंट्स है, टेलीग्राम पे भी हैं, please go check it out, and thank you so much for watching this video till the end. Bye bye, take care, Siddhant sir signing off.